Eat Waste Hospital, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, Spurs Fertility and Women's Care. और लीव एब्रॉड। लीव एब्रॉड। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। फौज विकी की जानिब से आज आसनसोल आश्रम मोड़ के करीब एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां तंजीम के सेक्रेटरी सचिन रॉय ने दुर्गापुर के तर्ज पर आसनसोल के लिए भी तंजीम की जानिब से एक मास्टर प्लान की मांग की। उन्होंने कहा कि हम कोलकाता के बाद आसनसोल को बड़ी आबादी वाला शहर कह सकते हैं, लेकिन उस शहर की तरह अभी तक इस शहर ने तरक्की नहीं की है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह दुर्गापुर को मास्टर प्लान के जरिए सजाया गया है, उसी तरह आसनसोल के लिए भी मास्टर प्लान लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक फ्लाईओवर की भी जरूरत है और हम लोग यूथ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सम्मानित करेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। वहीं तंजीम के सदर आरपी खेतान ने कहा कि जसीडीह से 5 ट्रेनें बड़ी शहरों के लिए खुलती हैं, जबकि उन ट्रेनों को यहां से खुलना चाहिए, क्योंकि आसनसोल जसीडीह से कई गुना बड़ा स्टेशन है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ट्रेनें यहां से खुले या फिर यहां से जसीडीह के लिए कोई इंतजाम किया जाए। साथ ही उन्होंने शहर में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनाने के मुतालबे के साथ दीगर मांगों को सामने रखा। इस मौके पर उनके अलावा विनोद गुप्ता, अजय खेतान और जेपी डिगानिया व दीगर खासतौर से मौजूद थे। যেটা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অ্যাকচুয়ালি ফাংশন হচ্ছে আগামী 20-30 বছর যে পপুলেশন কত ইনক্রিজ করবে, কত ভেহিকেলস ইনক্রিজ হবে, তার উপর প্ল্যানিং। যে কোনো ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ হচ্ছে তার। এর আগে মিস্টার ঘোষ ছিলেন, তার আগে মিস্টার হালদার ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমরা উঠতা বসতাম। তারা বলতো আমরা 20 বছরের আগে কথা চিন্তা করে আমরা সমস্ত প্ল্যানিং করি। কিন্তু এখন যে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আছে সেটা কোনো রোড রিপেয়ার হচ্ছে, কোনো হচ্ছে, এই সবগুলো কাজ হচ্ছে। এই যে আগামী দিনের কথা চিন্তা করে আসানসোলে কত পপুলেশন বাড়বে, কত ভেহিকেলস বাড়বে, তার জন্য কী রিকোয়ারমেন্ট, কীভাবে রোড ওয়াইডেনিং হবে, কীভাবে নতুন রোড হবে, কোথায় ফ্লাইওভার হবে, এইগুলো কোনো চিন্তা এখানে নেই। তার জন্য আমরা মাস্টার প্ল্যানে এটা ডিমান্ড করেছি। এবং এর আগে আমাদের কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দুর্গাপুরে মিটিং হয়েছে, সেখানে ফৌজবেগির তরফ থেকে আমরা ফ্লাইওভারের ডিমান্ড করেছি। কারণ যদি এনক্রোচমেন্ট না হয় ফ্লাইওভারের সলিউশন, যেমন কলকাতা মহা ফ্লাইওভার তো অনেক প্রবলেম সলভ হয়েছে, এরকম কলকাতা ফ্লাইওভার প্রচুর হয়েছে। সেকেন্ড সিটি হচ্ছে কলকাতা পর আসানসোল, কিন্তু আসানসোলকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না, এটা বরাবরই আসানসোল ডিপ্রায়। অতএব আসানসোলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় এবং তার মাস্টার প্ল্যান যদি না থাকে, তাহলে প্রপারলি ডেভেলপমেন্ট হবে না। এই জন্যে আমরা চিন্তা বলেছি আমাদের তরফ থেকে ডিমান্ড যে একটা মাস্টার প্ল্যান করা, যেটা দুর্গাপুরে বলেছেন, দুর্গাপুরে যেরকম মাস্টার প্ল্যান ছিল, আসানসোলে কিন্তু কোনো মাস্টার প্ল্যান নেই। এই মাস্টার প্ল্যানটা যদি করা হয়, আগামী দিনে অফিসার ডিএম চেঞ্জ হবে, কমিশনার চেঞ্জ হবে, মেয়র চেঞ্জ হবে, কিন্তু মাস্টার প্ল্যান থেকে যাবে। সেই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে যদি কাজ হয়, তাহলে আগামী দিনে আসানসোলে চেঞ্জ হবে, কিছু আমরা দেখতে হবে। তার জন্য যদি কিছু ফ্লাইওভার করার দরকার, সে ফ্লাইওভার নিয়ে আসতে হবে। যদি কিছু ওয়ার্ডিং করতে হবে, এনক্রোচমেন্ট ভাঙতে, সেটা করতে হবে। যেটা বলে গেলেন আসানসোল দিনের পর দিন রোড বাড়ছে না, উল্টো এনক্রোচ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত ফুটপাথ, আস্তে 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 একদম ক্লামজি হয়ে যাচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আমরা আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার কাছে আমরা তুলে ধরেছি। কিছু কিছু কাজ হয়েছে, তার জন্য আমরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে আরও যাতে কোনো পাবলিকের কোনো অসুবিধা না হয়, কোনো বিজনেসম্যানে যাতে অসুবিধা না হয়, বাইরে থেকে এলে যারা সুন্দর একটা টাউন দেখে, তার জন্য আমরা বলেছি একটা মাস্টার প্ল্যানের ডিমান্ড করেছি। সেটা করলে খুব ভালো হবে এবং যে কোনো জায়গায় ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রাখা উচিত। যে কোনো কমিটি হচ্ছে সমস্ত এদিকে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি কিন্তু রাখা হয় না। সেই কমিটিগুলোতে রাখা হলে তার আমাদের যে কনসেপ্ট, আমাদের যে চিন্তাধারা, সেগুলো আমরা শেয়ার করতে পারি, সেই শেয়ারও আমরা করতে পারি না। তো এইগুলো আমরা ডিমান্ড করছি এবং সব ডিমান্ড তো আমাদের প্রেসিডেंट साहब बोले गलें। আমাদের নতুন যেটা একটা আমরা सीडी से खुल रही है और मधुपुर से खुल रही है। वहाँ के बहुत दबंग एमपी हैं, हम किसी का नाम नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जो एमपी थे वो आज है भी नहीं, अभी इस पार्टी से नहीं है, किस पार्टी में है हमें पता भी नहीं है। यहाँ पर आज कोई एमपी है ही नहीं। तो सवाल ये है कि बात जब तक केंद्र में, जहाँ का रेल मंत्रालय काम करता है, जहाँ से केंद्र सरकार का, तो वहाँ पर अगर कोई पावरफुल आदमी अगर नहीं बोलेगा तो उनको ट्रेनें नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई रोना ही नहीं जानता है तो माँ भी दूध नहीं देती है, इसलिए यहाँ भी नहीं मिल रही है। 5 ट्रेनें वहाँ से चालू हुई है, गोवा की चालू हुई है, नई दिल्ली की आनंद विहार की चालू हुई है, वास्को डगामा की चालू हुई है,
और 2 ट्रेन खुली है, सब जसीडीह से खुल रही है। अरे ट्रेन का टर्मिनस तो यही है भाई, आसनसोल। सारी ट्रेनें जहाँ जसीडीह से स्टार्ट होती है वो आकर के ख़त्म कहाँ होती है? आसनसोल। DRM ऑफिस है, उसका DRM ऑफिस यहाँ से है, उसका रात का पार्किंग वहीं पर होता है, सफाई यहीं पर होती है, और कार यहाँ से खाली जाती है जसीडीह तक और वहाँ से पैसेंजर चढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को सबको मिला कि नहीं है? तो अब सवाल ये है, हमारी मांग इतनी सी है कि उन जो जसीडीह से खुली है, ठीक है, वहाँ के लोगों की भी ज़रूरत है, वहाँ का भी स्टॉपेज रखिए, पर वो ट्रेन जहाँ से जाती है, आसनसोल से जाती है, तो आसनसोल से जसीडीह तक का एक सरकार ऐसी व्यवस्था कर ले। हमने ये रिप्रेजेंटेशन उनको भी दिया है, DRM साहब को। DRM साहब बोले अगर हम लोग चाहें तो इसका रास्ता निकल सकता है, एक यहाँ से जसीडीह तक की टिकट वो लोग अलग से इशू करेंगे, हम लोगों का रिजर्वेशन जसीडीह से रहेगा, या सरकार चाहे तो यहाँ से भी रिजर्वेशन हो सकता है। तो जितनी नई नई ट्रेनें खुल रही हैं, आसनसोल उससे 8 गुना बड़ा जगह है। जसीडीह से, मधुपुर से आज यहाँ पर पैसेंजर कहाँ कहाँ के चढ़ते हैं? बर्धमान पश्चिम, बर्धमान पूर्व, बगल में बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरपुर, इतने सब जिलों के लोग यहाँ चढ़ते हैं। मधुपुर में तो खाली आसपास के लोग चढ़ते हैं। यहाँ की जो ट्रैफिक है वहाँ से 8 गुना ज़्यादा है, तो ये डिज़र्व ज़्यादा करता है ना, इसका हक ज़्यादा बनता है। हम ये मांग करते हैं फौजविकी की तरफ से कि जितनी ट्रेनें 2 साल में जसीडीह से खुली हैं, उन सब का क्या तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये रहे आसनसोल, और या वहीं से रखना है तो रखे। हम लोगों के पैसेंजर को, इस एरिया के पैसेंजर को ये सुविधा दे कि हमारे आदमी यहीं से चढ़ जाए और वहाँ से वो उसका वैलिड हो, तो इलीगल पैसेंजर करार न दिया जाए। तो ये हम लोगों ने रेल तक काफ़ी चिट्ठियाँ भी लिखी इस मामले में। हम लोगों ने आपकी GM साहब है, DRM साहब है, ऊपर में रेल बोर्ड को है, उसके बाद इधर प्रशासन को है, सारे मंत्रियों को है, सबको ये लेटर हमारा गया है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग का अगर धक्का लग जाएगा तो ये काम इस एरिया के लोगों को बहुत नई ट्रेनिंग मिल जाएगी। सड़क किसी भी शहर की लाइफलाइन होती है, लेकिन रानीगंज इतवारी मोड़ इलाके में ट्रैफिक इंतजाम की बदहाली की वजह कर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरना मतलब मुसीबत मोल लेना है। ट्रैफिक की वजह कर मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। इसलिए जब हमारे नुमाइंदे जाहिद अनवर ने यहाँ के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में ट्रैफिक कंट्रोलर की मौजूदगी ना के बराबर है। सबों का कहना है कि अगर सरकार इस मसले पर ध्यान दे तो इसे सुधारा जा सकता है, जिसके बाद परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज पश्चिम बर्धमान जिला के आसनसोल सब डिवीजन के सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ DM ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में खासकर इंडस्ट्रियल लैंड कन्वर्जन के मुतालिक बातें की गई कि इंडस्ट्रियल लैंड के कन्वर्जन का क्या तरीका होता है और ऑटोमेटिक लैंड कन्वर्जन कैसे किया जाता है, जिसको लेकर शिल्प सुविधा नामी एक सेल भी बनाई गई है, जिसमें 3 ऑफिसर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लैंड से जुड़ी हर परेशानी को सुलझाएंगे। साथ ही इंडस्ट्री के रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ मुश्किलात पर भी चर्चा किया गया, जिसे हल करने की बात की गई। इसके अलावा ऐसी परेशानियां जिसका हल राज्य सरकार को करना है, उसको लेकर 22 तारीख को दुर्गापुर में एक स्टेट लेवल पर सिनर्जी मीटिंग होगी, जहां पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बड़े अफसरान आएंगे जो इंडस्ट्री की परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर ADM-G, ADM इंडस्ट्री, ADM-LK, DPRDO, OC इंडस्ट्री, GMDIC और मुख्तलिफ चैम्बरों के अरकान खासकर मौजूद थे। में जो समस्याएं होती है उसको लेकर आज विशेष चर्चा हो रही है और अभी भी हम लोगों का मीटिंग अभी चल ही रहा है। तो ज़मीन संक्रांत जितना भी समस्याएं हैं उसका निदान के लिए आज जो है हमारे ADM LR साहब भी यहाँ पर हैं और हम सारे चैम्बर के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं उनको। DM साहब ADM LR साहब को निर्देश दिए हैं
कि इन लोगों का जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द निदान किया जाए और जो 22 तारीख का सिनर्जी है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें और जितने सरकारी विभाग हैं वो 22 तारीख को वहाँ पर रहेंगे। हम लोगों की और भी जो विभिन्न डिपार्टमेंट की जो समस्याएं हैं उसको भी हम लोग उस दिन वहाँ पर रखेंगे। और पश्चिम बंगाल सरकार का यह एक बहुत बड़ा अच्छा उद्योग है कि हम सारे व्यवसाय के लिए वो इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे हम लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। आज पश्चिम बर्धमान के आसनसोल सब डिवीज़न में जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनको लेकर आज माननीय जिला शासक ने एक मीटिंग की। मीटिंग में उपस्थित थे एडीएम जी, एडीएम इंडस्ट्री, एडीएम एलआर, डीपीआरडीओ ओसी इंडस्ट्री, जीएम डीआईसी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सब उपस्थित थे आसनसोल सब डिवीज़न के। उसमें आज जो चर्चा मोस्टली की गई वो इंडस्ट्रियल लैंड कन्वर्शन के बारे में। उन सब लोगों को क्या तरीका होता है इंडस्ट्रियल लैंड के कन्वर्शन का और उसके साथ साथ ऑटोमेटेड कन्वर्शन कैसे किया जा सकता है उसको लेकर हमारा एक शिल्प सहाय ऐसा बोल के एक सेल यहाँ पे हुआ है जिसमें 3 ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। और वो जो ऑफिसर्स हैं ये जितने भी लैंड के प्रॉब्लम्स आएंगे इंडस्ट्री को लेकर वो जो 3 ऑफिसर्स हैं शिल्प सहाय के जो भी ऑफिसर्स हैं 3 जो ऑफिसर्स हैं वो सब अभी इन लोगों को हेल्प करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री के और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जैसे कि एएमसी का ट्रेड लाइसेंस या फिर एडीडीए का एनओसी, उसके साथ साथ जो रोड का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ये सब चीज़ों को लेकर एक प्रिपरेटरी मीटिंग बुलाई गई थी। इस प्रिपरेटरी मीटिंग का मकसद यही था कि कौन कौन समस्या हमारे इंडस्ट्री को सता रही है और उसका क्या हल निकाल सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लेकर ये समस्या जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है जिसका समाधान यहाँ पे किया जाएगा वो हम करेंगे। उसके अलावा जो भी ऐसी समस्या कि राज्य स्तर पे वो करनी चाहिए, जिनका निवारण राज्य स्तर पे होना चाहिए, ऐसी समस्या का निवारण राज्य सरकार करने के लिए एकदम कटिबद्ध है। और उसको ही लेकर 22 तारीख को दुर्गापुर में एक सिनर्जी मीटिंग, राज्य स्तरीय सिनर्जी मीटिंग आयोजित करने वाली हैं और जहाँ पे हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी आएंगे और जो भी इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे 22 तारीख को दुर्गापुर में सृजनी हॉल या फिर जो भी हॉल हम डिसाइड करेंगे वहाँ पे आकर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और इंडस्ट्री को जितना भी सहाय हो सकता है उतना करने की हम कोशिश करेंगे। शिल्प सहाय, मैंने थोड़ा सा गलती से बोला, शिल्प सुविधा बोल के एक सेल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेल में हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से किया गया है शिल्प सुविधा, जिसमें 3 ऑफिसर्स हमने नियुक्त किए हैं। जो भी लैंड का इशू आएगा वहाँ पे सब लैंड के इशू इस शिल्प सुविधा सेल के माध्यम से उनका निवारण होगा। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To
work with it. You need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, and like the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, nursery to class 12, science, arts and commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Burdwan. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे। कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस सिलसिले में चैम्बर के सेक्रेटरी अरुण भाटिया ने कहा कि ये चौथा कैंप है जिसका इनेकाद चैम्बर की जानिब से किया गया है, जो 2 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने इस काम में उनकी मदद की है। अरुण भाटिया ने कहा कि अब तक 1900 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। यहाँ आज 300 लोगों को और कल भी 300 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अनिल बड़ा
चंदन इधर आके देख तो लिस्ट में नाम दे। हो गया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स एवं उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनकी फैमिली, उनके स्टाफ का काफ़ी दिनों से डिमांड रहा है कि वैक्सीनेशन लेने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो हमने जब एएमसी को अप्रोच किया तो हमारे अमरनाथ दा ने हमें ये हेल्प किया और रानीगंज में ये 4th नंबर वैक्सीनेशन कैंप रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स से लगवा रहे हैं। और हर कैंप में हमने 600 आदमियों को लगभग लगाया है और इस कैंप में भी आशा करते हैं कि लगभग हमारे 600 आदमियों को लगाएंगे। आज 300 2 तारीख दिसंबर को और 3 तारीख दिसंबर को 300 डोज लगे। अभी तक अप्रोक्सीमेटली कितना हो चुका है? अभी तक कैंप से लेके अभी तक कैंप तक और अभी तक कितना हो चुका है? अभी तक लगभग 1800 से 1900 लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। आज कितना आशा रखते हैं? कितना आज हम लोग का 300 है टारगेट और 300 फुलफिल हो गया। आपका नाम परिचय? मेरा नाम अरुण भरतिया, सेक्रेटरी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। কমিশনার আছে আর এই জায়গার একটা মালিক হচ্ছে এই নিয়ে ভূপেন্দ্র সিং অ্যাটওয়াল। এরা তাকে পয়সা, তার জন্য ইনজাংশন আছে, তাকে আমরা অফারও দিয়েছিলাম যে তুমি কিনে নিলে নাও, বাট তারা চাইছে যে আমরা জোর করে এটা দখল করে। মানে অনেকদিন ধরে কনস্ট্রাকশন চলছে কোনো স্যাংশন প্ল্যান ছাড়া, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাপ্রুভ স্যাংশন প্ল্যান। তাছাড়াও অনেক দিন ধরে কোর্টে সফট ওয়ার্ক নোটিশ ছিল যেগুলো অমান্য করে কাজ চলছিল। আজকে কোর্টের অর্ডারে একটা কমিশন করতে আসা হয়েছে। এখানে এখনও নিচে লোক দেখা যাচ্ছে যারা এখানে কাজ করছে, কমপ্লিটলি ডিফাইং দ্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অর্ডার। আর একটা সাবস্টেন্সিয়াল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে যেটার কোনো প্ল্যান নেই, যেটা হ্যাজার্ডাস হতে পারে নর্মাল লোকের জন্য, একটা পাবলিক আর সেফটি আর ট্র্যাঙ্কুইলিটি প্রবলেম। এখন কি করবেন আপনারা? এখন কমিশনটা হচ্ছে, কমিশনের রিপোর্ট আসবে, তারপরে ফার্দার কমপ্লেন থানাতে আর কর্পোরেশনে যেখানে যেখানে দরকার হবে করা হবে। কি নাম আপনার? চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট। আপনার ক্লায়েন্টের কি নাম? আমার ক্লায়েন্টের নাম ভূপেন্দ্র সিং অ্যাটওয়াল। আর কে করছে লোকে? এখানে করছে একটি কলকাতার ফার্ম যার নাম হচ্ছে অনিক্স হাউজিং এলএলপি, আর পারমিন্দর সিং বলে একজন, তার মানে তিনি এখানকার মানে লোকাল পার্সন যে করছেন। लोग का फैमिली बिल्डिंग है, अटवाल बिल्डिंग, और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है टोटली इलीगल हो रहा है। ये स्टॉप ऑर्डर था कॉरपोरेशन से टू स्टॉप फर्दर कंस्ट्रक्शन, ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। परमिंदर सिंह उर्फ रोशन was violating these orders and is still continuing to violate these orders passed by the corporation. That is very good. तो ये आपने पुलिस को जानकारी दी इसका लेके? कब हमने सब we have given letters, representations to everyone, and to the South PS, to the CP, we have given representations, even to the extent that corporation has written to the concerned authorities to have this construction stopped. Illegal, unauthorized construction stopped. अच्छा, तो ये कॉर्पोरेशन से आपको हेल्प मिल रहा है? बिल्कुल, we are getting full cooperation. And but person is working जैसे 2 बजे रात को कर रहे हैं, जब कोई दिखता नहीं है। सो ये सब रोकने के लिए कमीशन आया है, रिपोर्ट बना रहा है। दैट इज यही। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह अटवाल है। आई एम सन ऑफ भूपेंद्र सिंह अटवाल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टेरी होल्डर ऑन हिज बिहाफ। तो ये इसमें क्या बनाया जा रहा है सर? ये अब पता नहीं, ये बोलना मुश्किल है क्या बना रहे हैं। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।